Today we are going to discuss about the Tennyson's Ulysses, which is in the forms of the dramatic monologue, which he has written during the time of the 1833 and it published during the time of the 1842. It is a sharp contrast of his own poem with the name of the Lotus Eater. It was a poem in which he has presented the philosophy of the passionate and inactivity, but in this poem with the name of the Ulysses, he has expressed about the new idea of life. It is a book in which he has expressed that human life should be always active, energetic, and bold. He should always ready for faces many challenges in their life. And in this poem, he has represented the manner friend of Ulysses and the other people who were with him during the time of the voyage. And they were presented just they are alive as a being alive and speak really. But when he has wrote this poem, no one of them were alive. And he has presented the poem in which he has expressed about the courage, adventure, and the boldness of his own thinking and the life. And the story of the Ulysses has been taken from the Homer's epics based on the Greek mythology, and but the Tennyson's he has expressed just like a great Victorian poet, a great quality in it. It is a story of the King Ulysses, who was the king of the Ithaca. He has come from the Trojan War after few years later. With this interview, the objects of the Ulysses did not recognize him, even his old wife had not too much interested in him, and he feel that the life which he is living here full of the monotonous and the boring. Finally, he decided that he left the all his kingdom, of which he was a king, to his own son Telemachus, and he will go for the journey and making adventure in his life. In this poem, Tennyson had teaches us about the activeness, bold and energetic quality which we should follow in our life, and the language which he used in this poem is a dignified, and the Ulysses is a symbol of the action and the Victorian state of England, while the people of the Ithaca were the symbol of the inactiveness land just like Africa, and which is ruled by the unjustic and the unfair law. Now I am going to explain you the whole poem line by line. It little profit that an idle king by this still hard among the barren grace, matched with an aged wife, I met and all unequal laws unto a savage races that herd and sleep and feed and know not me. Here in this line, the poet express about and he throw light on the restless character of Ulysses. Here in these line, he express the first word, it little profit. The word of this means that it is unprofitable. यह लाभकारी नहीं है. That an idle king here expressed to the Ulysses inactive king. यानी कि बिना कुछ काम किए आक्रमण राजा की तरह, है ना. बाय दिस स्टिल हर्ड हियर express about the domestic life is static एंड इंटरप्राइजिंग. हियर कहने का मतलब घर में रहना बिना कुछ किए, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है. एमंग दिस हियर बैरन क्रेज एक्सप्रेस अबाउट द लैंड इथाका. इथाका के लिए एक्सप्रेस किया गया द लैंड इथाका के लिए, जहाँ का वो राजा है यूलिसिस. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ. हियर द एज्ड वाइफ एक्सप्रेस टू Penelope, the wife of Ulysses, and the next word, the I met and all. Here it express they are suggestive of routine duty which does not require adventures or enterprises a lot.
and distribute expression of petty duties. And the word unequal laws unto a savage races, unequal express not unjust but not affecting all in the same manner or degree. A primitive state of law as the इथाकास वरा सेवेज रेसेज, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग जो है सेवेज हैं, असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं. और कह रहा है दैट हॉर्ड एंड स्लीप, और क्या करते हैं वो, हॉर्डिंग मीन्स कलेक्टिंग द मनी, स्लीप करते हैं एंड द फीडिंग, इस तरह करके. नो नॉट मी, नो नॉट मी दे यूलिसिस ऑलवेज सेलिंग ऑन द हाई सीज, यानी हमेशा वो यात्राओं पे रहता था, वॉयस पे, इन सर्च ऑफ द एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर्स. ही हैड नो टाइम टू बिकम अ फैमिलियर विद हिज पीपल, यानी कि वहाँ के लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके साथ कोई जान पहचान नहीं है. द होल लाइन एक्सप्रेस दैट इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग, यानी कि उसे जो है इस तरह आइडल किंग के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. इसे जो है कैसा महसूस होता है, अनप्रॉफिटेबल, लाभकारी बिल्कुल नहीं लगता है. बाय दिस स्टिल हार्ड, और कह रहा है कि एकदम बिना कुछ किए एमंग दिस बैरन क्रीज, और जो है ये इथाका लैंड के लिए एक्सप्रेस कर रहा है जहाँ पे उसे कुछ भी कोई एडवेंचर दिखाई नहीं दे रहा है. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, और अपनी बूढ़ी स्त्री के साथ, ठीक है, हु हैड नो इंटरेस्ट विद हिम, यानी कि उसके साथ अब उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है. आई मेट एंड एड ऑल हेयर एक्सप्रेस, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ड विच एक्सप्रेस अबाउट द cheerless and dull atmosphere of home. Here expressed in these words, and further he expressed and not know me, यानी कि वहाँ के लोग बिल्कुल हमें नहीं जानते, कहाँ के, इथाका के, और वो हमेशा किस में बिजी हैं, हॉर्डिंग में, स्लीपिंग में, यानी कि धन इकट्ठा करने में, सोने में, और जो है खाने में, और इस तरह का जीवन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. कहने का मतलब है कि इथाका के लोग उसकी खतरा लेने वाली आदत तथा उसके विशाल अनुभव की सराहना नहीं कर सकते, जिन्होंने राज्य से उसकी लंबी लंबी अनुपस्थिति के कारण उसे बिल्कुल नहीं पहचाना. यूलिसिस के हृदय को आकर्षित करने में असफल रहे, इसलिए यूलिसिस ने कहा कि ऐसा निष्क्रिय जीवन उस आदमी के लिए बेकार है. और यहाँ पे देखो ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा इस लाइन में, इस स्टेंजा में. द फ्रेज मेट एंड एट ऑल, स्टिल हार्ट and the aged wife stand for the cheerless and the dull atmosphere of home, and the epithet aged has direct connection with the still heart. And the use of transferred epithet in equal laws is also noteworthy. It means unequal treatment of the citizen before the law. और ये लाइनें कुछ दी गई हैं इसमें. द लाइन द हार्ट, द स्लीप एंड फीड स्टैंड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेवेज रेसेस, यानी कि जो है सब जो जनजातियाँ उनके लिए सब गुण होते हैं कि केवल खाना पीना और इकट्ठा करना है. दैट इज़ बिजी इन ईटिंग, है ना, स्लीपिंग, होर्डिंग मनी. दे आर लाइक अ ब्रूड्स ऑफ द फील्ड, सोविंग, रीपिंग, है ना, गैदरिंग, ईटिंग, स्लीपिंग. संस्कृत पोइट्स भर्तरी हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज displeasure on this kind of life in one of his couplet. उन्होंने क्या कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानेत पशुभि नारायणम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना. उसी से इसकी जो है कंपेयर की गई है. I cannot rest from table, I will drink life to the least. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scooding depths the rainy Hades vexed the dim sea. Here the poet describe about clearly the restless character of Ulysses. Here he expressed that I cannot rest from travel, यानी कि मैं बिल्कुल भी अपनी यात्रा से आराम लेना नहीं चाहता हूँ. एंड आई कैन नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू अ रूट इन हिज आइलैंड्स होम, यानी कि एकदम एक स्थान पर अपने जो है होमलैंड पे मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहता हूँ. ही डिजायर टू ड्रिंक द कप ऑफ लाइफ टू द लास्ट ड्रॉप एंड टेस्ट
all experience of life to the end of his life, यानी कहने का मतलब I will drink life to the lee। इसका कहने का मतलब मैं अपने जीवन के अंत तक यानी कि आखिरी सांस तक अपने जीवन के आनंद को उठाना चाहता हूँ। लास्ट ड्रॉप दैट टेस्ट ऑल एक्सपीरियंस, यानी कि अपने जीवन के हर अनुभव को जो है महसूस करना चाहता हूँ। ऑल टाइम आई हैव इंजॉय ग्रेटली, और हमेशा यानी कि इसने इस तरह के जीवन को इंजॉय किया है। इन दिस कनेक्शन ही रेफर्स वॉट ही हैड डन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में इसने क्या किया। ही हैड गॉन थ्रू ऑल एक्सपीरियंस, यानी कि हर तरह के अनुभव से ये गुजरा। और बोल रहा है सम ऑफ देम वर हैप्पी, यहाँ पे देखिए लिखा है ना आई हैव इंजॉयड, यानी कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। ग्रेटली यानी कि जो फुल ऑफ हैप्पी थे। हैव सफर्ड ग्रेटली, और कुछ कैसे थे, अदर्स वर अनहैप्पी, यहाँ पे सफर्ड यानी कि अनहैप्पी थे। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन, और दोनों के साथ, किसके साथ, बट ऑल ऑफ देम वर ऑन ग्रैंड स्केल, लेकिन इसके बावजूद ही सब एक ग्रैंड स्केल के थे। फॉर ही वॉज वन ऑफ द हीरोज ऑफ द ट्रोजन वॉर विच सोक द एंटायर वर्ल्ड। क्यों ये कह रहा है, क्योंकि उसने जो है किसमें पार्टिसिपेट किया था, ट्रोजन वार में, और जो है जिसने संपूर्ण विश्व की जड़ें एकदम हिलाकर रख दी थी, है ना, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। समटाइम्स ही डिड ग्रेट थिंग्स इन द कंपनी ऑफ द अदर ग्रीक, यहाँ पे देखिए कहा गया है ना, ये वर्ड यूज किए गए हैं, यानी कि दैट लव्ड मी, यहाँ पे ग्रीक पर्सन के लिए जो उसे चाहते थे, उसके साथ रहते थे हमेशा, मैरनर, उनके लिए एक्सप्रेस किया है, कभी उनके साथ, और जो है कभी कहता है एट अनदर लाइन्स ही वॉज एलॉन, और कभी कभी कहता है यहाँ पे कभी कभी वो अकेले ही उनका सामना किया। ऑन शोर एंड वेन थ्रो, और कहाँ कहाँ पे उन्होंने सामना किया। समटाइम्स ही हीरोइक एक्शन वॉज डन ऑन लैंड, कभी पृथ्वी पर। एट अनदर टाइम्स ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एट सी, और कभी कभी समुद्र में उसने अपने कौशल को दिखाया। और आगे क्या कह रहा है ये, एंड वेन थ्रो स्कूडिंग डेप्थ्स एंड द रेनी हाइडीज वैक्स द डिम सी, यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्टोर्म एट से, यहाँ पे स्कूडिंग डेप्थ उसी के लिए कहा गया है। द वर्ड स्कूटिंग ड्रिफ्ट एक्सप्रेस अबाउट द स्विफ्टली स्ट्राइविंग शॉवर्स, तेज चलने वाली बौछार के लिए यहाँ पे। और हाइडीज एक्सप्रेस टू द क्लस्टर ऑफ 5 स्टार्स इन द कॉन्स्टिलेशंस बिलीव्ड बाय द एंशिएंट टू ब्रिंग रेन, यानी कि आकाशगंगा में 5 तारों का जो गुच्छा होता है, और जो पुराने लोगों के मतानुसार वर्षा कराता है, उनका ऐसा कहना मानना है कि ये वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। और जो है यहाँ पे वैक्स एक्सप्रेस टू द परप्लेक्स, यानी कि परेशान नहीं हुआ कभी, एंड द डिम सी, और यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है कि ही टुक एवरीथिंग विद अ हीरोइक हार्ट व्हेन दिस वाज द केस इट इज़ बट नेचुरल दैट ही कुड नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, यानी कि कैसी भी स्थिति आए लेकिन इसने कभी युद्ध करना छोड़ा नहीं, और ना ही कभी इसने आराम किया, और अपने जीवन में कभी इसे आराम करना पसंद है। इन नेक्स्ट लाइन ही एक्सप्रेस आई एम बिकेम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट मच हैव आई सीन एंड नो सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स climates, councils, governments, myself not least but honored of them all. Here he expressed in these lines that he referred by him in the address to his manner, और अपने मैनर को एड्रेस करते हुए कह रहा है इन दीज लाइन्स द पास्ट हिस्ट्री ऑफ यूलिसिस, अपने जो है पास्ट के बारे में उन्हें बता रहा है। क्या बता रहा है, आई एम बिकेम ए नेम, कह रहा है आई एम बिकेम ए नेम, कहने का मतलब आई हैव अ वेरी पॉपुलर नेम दैट टाइम। और आगे क्या कह रहा है, कहने का मतलब आई हैव बिकेम अ फेमस फॉर माई एडवेंचरस स्पिरिट, यानी कि मैं अपनी दुस्साहस प्रवृत्ति के लिए विख्यात हो गया हूँ, उसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद द हंग्री हार्ट, और यहाँ पे हंग्री हार्ट एक्सप्रेस टू द अ हार्ट डिज़ायरिंग फॉर एडवेंचरस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि वो हृदय जो हमेशा जो है ज्ञान अनुभव का इच्छुक हो, उसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है। मच हैव आई सीन एंड नॉन सिटीज़ ऑफ मैन, और कह रहा है उसने बहुत सारे लोगों को जाना, बहुत सारे देशों के बारे में जाना। रोम मीन्स वॉन्डरिंग करना, घूमना। नॉलेज बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि घूमकर निरीक्षण के द्वारा उसने तमाम अनुभव प्राप्त किए हैं। और बोल रहा है आगे ये एंड मैनर्स
क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, माई सेल्फ नॉट लेस्ट, और इस यानी कि हर जगह घूम कर उसने हर जगह के मैनर, क्लाइमेट, काउंसिल्स, गवर्नमेंट के बारे में जाना. माई सेल्फ नॉट लेस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल. हियर द वर्ड एक्सप्रेस honored them all, यानी कि he has got always a great name among them. Here the poet express that he was one of the hero of the Trojan War which shocked the entire world. But for this suggestion, Troy could never have been defeated on account of such cleverness of as he became the name. यानी कि ट्रोजन वार में जो है डिफीट नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम अपना एक विख्यात हो गया है ना. और उसके साथ साथ ही वो एक्सप्रेस करा, उसने बहुत सारे जो है क्लाइमेट्स को देखा, मैनर्स को देखा, काउंसिल्स को देखा, गवर्नमेंट और बहुत सारे सिटीज़ में वो घूमा है ना. माई सेल्फ नॉट लेस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, और जो है कहीं पर भी इसे जो है कहीं पे लेस्ट नहीं हुआ, कहीं पे इसे जो है इस तरह का अनुभव नहीं हुआ कि इसका सम्मान वहाँ पे कम हुआ है, बल्कि हर जगह बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, और सभी के बीच ये सम्मान प्राप्त किया इसने. यानी कि कहने का मतलब ऐसी बुद्धि के कारण उसे नाम कमा लिया था. इन नेक्स्ट लाइन ही एक्सप्रेस एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई प्योर्स फॉर एंड ringing plans of windy Troy. I am a part of all that I have met. At all experience is an arc whereto glimpse that untraveled world whose margins fade forever and forever when I move. Here in these lines he expresses, Ulysses explains his thirst for more and more knowledge in his address to the mariner. और जो है अपने जो है mariner को एड्रेस करके जो है अपने थर्स्ट को एक्सप्रेस कर सकता है for the knowledge. Here in these words, Ulysses want to say that the among this his other experience and the adventurous his part of war Troy also is worth mention. Here the word drunk delight of battle expressed to the I enjoyed the pleasure of fighting battle, यानी कि युद्ध करने का आनंद लिया. यानी कि कहने आई ड्रंक डिलाइट ऑफ द बैटल, यानी कि हमेशा हमने युद्ध करने का आनंद लिया. विद माई पेयर्स, या पेयर्स एक्सप्रेस टू द माई इक्वल्स. माई इक्वल्स यानी कि कहने का मतलब एंटागोनिस्ट्स एज वर्दी एंड ब्रेव एज माई सेल्फ. माई इक्वल्स यानी कि हमारे बराबर ही जो है विरोधी जो हमारे समान वीर तथा योग्य थे उनसे, यानी कि इसने हमेशा लड़ने का आनंद लिया. फॉर ऑन द ringing plains, here the ringing plains expressed to the plains ringing with the sounds of battles. वे मैदान जो युद्ध में द्वंद्व से गूंज उठे हैं ना. और बोल रहे हैं ऑफ विंडी ट्रॉय, यानी कि ट्रॉय के युद्ध के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है. आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, यहाँ पे मैं उसका हमेशा क्या था. विंडी ट्रॉय यहाँ पे एक्सप्रेस द सिटी ऑफ अ ट्रॉय आउटसाइड विच स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, यानी कि ट्रॉय नगर जिसके बाहर जो है वेगपूर्ण हवाएं बहती हैं. और यहाँ पे देखिए मेट के लिए एक्सप्रेस किया है माई एक्सपीरियंस हैव बिकम अ पार्ट माई एक्सटेंस, यानी कि जो है मेरे अनुभव मेरे अस्तित्व का एक भाग बन गए. यहाँ पे देखिए द वर्ड इज एक्सप्रेस बाय दैट. एंड फर्दर ही एक्सप्रेस आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट. उसके बाद yet all experience is an all where through, यहाँ पे where through the where through express the words great way, यानी कि द्वार. where through का मतलब through which जिसमें से है ना. और ये gleam express to the science चमकती है. and the word that untraveled word whose margin fades, यहाँ पे मार्जिन एक्सप्रेस टू द बॉर्डर सीमा के लिए एक्सप्रेस किया गया. अनट्रेवल्ड वर्ड एक्सप्रेस टू द अनएक्सप्लोर्ड लैंड, यानी कि बिना खोजे हुए देश के लिए एक्सप्रेस किया गया है. फेड बिकम्स डिम, यानी कि धुंधली हो जाती है ना. हाउ डल टू पॉज, यहाँ पे हाउ डल टू पॉज एक्सप्रेस दैट. अब देखिए क्या कहा है यहाँ पे. यहाँ पे पाइट कहना चाहता है, यानी कि ही एक्सप्लेन्स हिज थॉट्स फॉर मोर एंड मोर नॉलेज ऑफ हिज एड्रेस टू द मैनर, और बता रहा है अपने मैनर्स को सारा बता रहा है कि किस तरह उसने गौरवपूर्ण सौर्यपूर्ण वर्क जो है कार्य किया अपने जीवन में. कह रहा है द वॉर ऑफ ट्रॉय ही एक्सपीरियंस द प्लेजेंट थ्रिल ऑफ फाइटिंग एंड द अपोनेंट हु वर एज अ ब्रेव एज ही हिमसेल्फ, यानी कि उन सबसे लड़ा जो उसी के समान बलवान थे. ही फॉट ब्रेवली विद हिज एडवर्सरीज ऑन द प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, और जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती थी उस मैदान पे उसने उस
ट्रॉय युद्ध को लड़ा, वेयर फ्यूरियस बैटल्स रेज्ड एंड द क्लैंग ऑफ द आर्मर्स ऑफ द वॉरियर्स वाज हेard। यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े जो है सैनिकों ने और जो है योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था, ठीक है। यूलिसिस कंपेयर्स द नॉलेज टू एन आर्च एंट्रेंस थ्रू द विच अ मैन कैच्ड साइन ऑफ आइलैंड ही हैज़ नॉट विजिटेड। और यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि यूलिसिस ज्ञान की तुलना एक महरावदार यानी कि द्वार से करता है, जिसके अंदर से मनुष्य उस भूमि को देख सकता है जिसकी उसने सैर नहीं की है ना। महराव से उस भूमि को देखकर उसकी तरफ यानी कि यात्रा प्रारंभ कर देता है ना, लेकिन परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसे क्षेत्र उसकी दूरी से पीछे हटते जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस किया गया है ना, येट ऑल एक्सपीरियंस इन आर है ना वेयर थ्रो, यानी कि जब वहाँ पे जाता है, ग्लिम्स दैट यानी कि जो चमकता रहता है, अनट्रेवल्ड वर्ड यानी कि जिसकी यात्रा उसने नहीं की है, हुज मार्जिन्स फेड यानी कि उसकी सीमाएं जो है धीरे धीरे फेड होती जाती हैं, डिल होती जाती है, डिम होती जाती है, फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, जैसे वो आगे बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो है इन द सेम वे इफ़ अ मैन हैज़ acquired some knowledge he becomes to know that there is still more of knowledge to acquire, यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान करने के प्राप्त करने के बाद उसके अंदर जिज्ञासा होती है और ज्ञान को प्राप्त करें, है ना। द मोर ही लर्न, जितना ही वो यानी कि सीखता है, द मोर ही रियलाइज, और उसे एहसास होता है देयर इज एट अ प्लेंटी ऑफ नॉलेज, फिर भी उसे क्या होता है कि ऐसा लगता है लेफ्ट टू गेन, यानी कि अभी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बचा है ना, और अभी भी बहुत कुछ कम उसने सीखा है। एंड सो ही इज इन अ फील्ड विद द डिजायर फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, और हमेशा उसके अंदर कैसी जिज्ञासा होती है, और ज़्यादा जानने की, है ना। यूलिसिस मीन्स दैट द थर्स्ट फॉर नॉलेज कैन नेवर बी फुली क्वेश्चन, यानी कि जो उसके अंदर जिज्ञासा है जानने की, उसे कभी कम नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब यूलिसिस कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकती है ना। चाहे आप जितना ज्ञान प्राप्त करते जाइए आपको उसे कम ही लगेगा। यानी कहने का मतलब वही है ना, ग्लिम्स द अनट्रेवल, जितना आगे चमकता हुआ देश जिसे उसने अभी नहीं जो है यात्रा की है वो और आगे बढ़ता है, तो फिर वो मार्जिन फेड होती जाती है और उसे और आगे नया दिखता जाता है, वो बढ़ता जाता है और उसे कम ही महसूस होता है ना, कहने का मतलब यही। और इन 5th स्टैंजा ही एक्सप्रेस how dull it is to pause to make an end, to trust unborn but not to sign in dues, as through to breathe were life piled on life, were all too little and one to me, little remains but every hour is saved from that eternal silence, some things more a bringer of new things. Here in these lines that poet express about, in these lines he reveals the poet's philosophy of life, यानी कि यहाँ पे उसकी philosophy of life को express किया गया है। He explains human life is a brief but precious, यानी क्या कहते हैं, how dull it is to pause, यानी कि कहने का मतलब मनुष्य का जीवन छोटा है लेकिन वो बहुत ही मूल्यवान है। यहाँ पे वर्ड कर रहा है यूज, हाउ डल इज हियर द मीन देयर फोर, टू रिमेन आइडल इज वन स्पॉट मेक्स वन डल, यानी कि एक स्थान पर खाली पड़े रहना व्यक्ति को क्या बना देता है, निष्क्रिय बना देता है ना। टू मेक एन एंड, टू मेक एन एंड टू ऑल इंटरप्राइजेज, यानी कि सभी साहसिक कार्यों का अंत होना और यह सही अनुभव की खोज करना है ना। और बोल रहा है टू मेक एन एंड, है ना, टू रस्ट अनबर्निश्ड, हियर पे यहाँ पे कंपेयर किया गया है नॉट टू साइन इन यूज, और कैसे यानी कि एक्सप्रेस यहाँ पे किया गया पोएट एज अ कंपेरिजन ही हैज प्रेजेंट देयर दैट therefore man should properly make use of each and every moment of life, यानी कि जीवन के हर जो है मोमेंट को जो है यूजफुल बनाना चाहिए। one should not pause at any time, यानी कि कभी निष्क्रिय होकर नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। we should not put an end to all his activities, it is better to shine and dazzles like a piece of iron always used than the pause and the rust like a piece, कहने का मतलब अगर कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया जाता है, अगर उसे यूज़ नहीं किया जाता तो क्या होता है, जंग लग जाती है ना। तो इसी तरह अगर हम जो है अपने जीवन को, अपने लाइफ को अच्छे एडवेंचर्स कार्य में नहीं लगाएंगे तो उसमें भी जो है एक तरह से जंग लग जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, है ना। और बोला है मैन इज नॉट बॉर्न टू लेड एन एडल लाइफ, यानी कि आदमी का जन्म इसलिए नहीं हो कि वो निष्क्रिय जीवन को व्यतीत करे, है ना, व्यतीत करे। लाइफ इज नॉट अ मेंट ओनली टू ब्रेथ एंड डाई, अभी आगे बताया ना, हॉर्डिंग, स्लीपिंग,
और जो है ईटिंग, इसमें सब में आदमी जो है लाइफ जो है अपना लीड करता है, लेकिन ये उचित नहीं है, इसके लिए जीवन नहीं मिला है हमें, है ना। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये वही क्या है, बिना प्रयोग किए लोहे के टुकड़े की बात जंग लगने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है कि व्यक्ति जो है क्या करे, अपने कार्य को करे, है ना। मनुष्य आलस्य के जीवन में व्यतीत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है ना। यहाँ पे देखिए ना, एज थ्रू द ब्रीथ वन लाइफ, केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, क्या कह रहा है, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, कहने का मतलब अ नंबर ऑफ लाइफ्स, बहुत से इकट्ठे जीवन है ना, कि ऑफ वन ओनली वन लाइफ, है ना, केवल एक ही जीवन नहीं है। और बोल रहा है यहाँ पे वर ऑल टू लिटिल, फिर भी ये सब छोटे पड़ जाते हैं, एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स बट एवरी ओवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मैन इज नॉट बॉर्न टू लीड टू एन आइडल लाइफ, लाइफ इज नॉट मींट ओनली टू ब्रीथ एंड डाई, है ना। द यूनिवर्स इज सो वास्ट, संसार इतना बड़ा है, दैट लाइफ इज पाइल्ड ऑन लाइफ आर बट नो लिटिल टू कवर इट, यानी कि जीवन यानी कि व्यतीत आदमी करता जाता है लेकिन फिर वो कम पड़ जाता है ना। एंड नो इट लाइफ इज़ अ ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त है, ऑफ सच अ ब्रीफ लाइफ ओनली वर वेरी लिटिल इज लेफ्ट, लेकिन क्या कह रहा है, अभी थोड़ा सा समय उसके लिए बचा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, है ना, फॉर यूलिसिस कह रहा है। और इन हिज ओल्ड एज बिफोर डेथ ब्रिंग अबाउट द इटर्नल साइलेंस, और जो क्या कह रहा है इसके साथ ही कि जो है अनेक जीवन मिलकर भी उसकी यात्रा करने में, उसका जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कम है ना। ऐसे छोटे से जीवन में यूलिसिस के लिए वृद्धावस्था में बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। मृत्यु द्वारा स्थायी शांति आने से पूर्व यूलिसिस प्रत्येक घंटे का जो स्थायी शांति में बचा लिया है ना, उसका लाभ क्या करना चाहता है, उसका लाभ उठाना चाहता है ना। यूलिसिस वांट टू यूटिलाइज एवरी आवर विच इज़ सेव्ड फ्रॉम इटर्नल पीस, यानी कि जो भी समय बचा है उसको जो है अच्छे से यूज करना चाहता है ना, बिफोर डेथ, यानी कि मृत्यु आने से पहले, है ना। पुट एन एंड टू हिज लाइफ एंड हिज एक्टिविटीज, ही शुड अचीव समथिंग नोबल एंड शुड नो एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, यानी कहने का मतलब मृत्यु द्वारा जीवन तथा गतिविधियों का अंत होने से पूर्व उसे कुछ उत्तम वस्तु प्राप्त करनी चाहिए और नई वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना तथा उन्हें ज्ञात करना चाहिए, है ना। यहाँ पे फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, यानी कि डेथ आने से पूर्व, है ना, समथिंग मोर, कुछ अधिक, ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नई थिंग्स के जो है नई चीज़ों का उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है। इन नेक्स्ट एक्सटेंडा ही एक्सप्रेस एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons to stores and the heard myself and this a grey spirit earning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bounds of human thought. Here in these lines the poet express the Ulysses strongly criticized the life of idleness that he was leading at Ithaca, यानी कि जो जीवन वो व्यतीत कर रहा है वहाँ पर इथाका में, उसका जो है उसने क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है। और क्या कह रहा है, he knows that the knowledge is endless and death closes all. Some might say that there is no meaning in human activities. क्या कह रहा है कि and whilst यहाँ पे would be hateful, यानी कि इस जीवन को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। From some these to stores and the hoard myself, ठीक है, some से यानी कि केवल इकट्ठा करना और जीवन में केवल इकट्ठा करना, and these gay spirits earning in desire, और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना, है ना। He thinks that every hour spent usefully is saved from the eternal silence of death, यानी कि कहने का मतलब डेथ आने से पहले उसे पूरी तरीके से यूज करना चाहता है। और every hour would bring a new experience, हर नया समय उसके लिए क्या लाएगा, नया अनुभव लाएगा। hence he calls it a while to criminal to waste the 3 years of his life that might remains for him। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक घंटा नवीन अनुभव का प्रतीक है ना, इसलिए वह अपने जीवन को के 3 वर्षों को क्या करना चाहता है, जो शायद उसके लिए शेष बचे हुए हैं, नष्ट करना बुरा अथवा अपराध समझता है ना। और फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आयु में वह वृद्ध है परंतु दिल का क्या है, वो यंग है। हार्ट से कैसा है, वो यंग है ना। यहाँ पे अर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, यानी कि जैसे डूबता हुआ सूर्य, यानी कि आस्त होता हुआ सूर्य की तरह, यानी कि नॉलेज को गेन करना चाहता है। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, जितना आदमी सोचता है उससे ज़्यादा, है ना। कहने का मतलब अ पर्सन वुड बी एबल टू कीप इट व्यू इफ़ ही टू गोज
टू द अदर हेमेस्फीयर सिमिलरली, यानी कि जैसे सूर्य दूसरे यानी कि अस्त होके क्या कि दूसरे संसार में चला जाता है ना, इसी तरह ये कहने का मतलब ये भी यहाँ से भगवान के पास जाने से पहले कुछ ना कुछ ज़्यादा गेट करना चाहता है ना। सिमिलर यूलिसिस डिजायर टू बी इटर्नल परसेट्स ऑफ द नॉलेज बियॉन्ड व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। कहने का मतलब एक व्यक्ति यदि दूसरे गोलार्ध में चला जाए तो उसे अपनी दृष्टि से रख सकता है ना, इसलिए इस प्रकार यूलिसिस भी अपने जीवन काल में अब तक की जो कुछ प्राप्त कर लिया है उसे भी आगे वह ज्ञान की खोज में संलग्न रहने की इच्छा करता है, यानी कि वो हमेशा हम नॉलेज को गेट करना चाहता है।